Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic straight lines. This is the most important module क्योंकि questions ज्यादातर इसी section से बन के आएंगे. In today's module, we will learn about parallel lines, perpendicular lines and angle between the lines. So first let me share the screen with you. Okay. So, this is, as I told you, this is the third module of the topic straight lines. And in this module, we will learn the property of the like the distance of a point from the line. We will learn about parallel lines and perpendicular lines. This is very, very important because ज्यादातर questions इसी section से बन के आते हैं. And also we'll learn about the angle between two lines. Okay. So let's start with the topic. Now, first thing is to find the distance of a point from a line. So suppose here L is the line. This you can see that this is a line. Suppose this line is L, and suppose the equation of this line is ax plus by plus c is equal to c0. Now we know that the general equation of any straight line can be written as ax plus by plus c is equal to 0. And suppose there is a point P which is whose coordinate is x0 and y0, and if you want to find the distance, then can you find the distance? Yes. So if you know the equation of a line and if you know the coordinate of a point, तो आप उस पॉइंट का उस लाइन से कितना डिस्टेंस है ये निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? सो the distance का formula is ax0 plus by0 plus c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसीलिए इसको हम मोड में रखेंगे. ठीक है. ओके, सो वी विल सॉल्व वन सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस, सो विल अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है. नाउ सपोज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P whose coordinate is 5,6. तो मान लो कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,6 and this is line AB whose equation is minus 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. ठीक है. तो यहां से हमें डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस इज नथिंग बट ax0 प्लस by0 प्लस c. ओके, तो ये जो है दिस इज x0 एंड दिस इज xy. अब x o y o बोल सकते हो. और इस लाइन को अगर हम कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, सो आई कैन से दैट a इज इक्वल टू -2, b is equal to +3 and c is equal to +4. ठीक है. तो डिस्टेंस के फॉर्मूला में ये सब डाल देते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट वन? axo, यानी कि a इज -2 एंड xo की वैल्यू है 5 प्लस by, b is 3, y is 6 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट -10. अच्छा, c की वैल्यू 4 है तो पुट c इज इक्वल टू 4. सो -10 प्लस 18 प्लस 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 इज √13. So 18 plus 4, 22, 22 minus 10 is 12. So this is nothing but 12 upon √13. This is the distance of a point from the line. कितना distance है? 12 divided by √13. This is the answer. ठीक है. सो व्हाट वी लर्न हियर कि अगर हमें लाइन का इक्वेशन पता है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो दोनों के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं. Now, let's solve the question. The equation of the base of an equilateral triangle is x plus y is equal to 2. So ये एक equilateral triangle है, इसका base का equation है x plus y is equal to 2 and the vertex is 2 comma minus 1. So this point is 2 comma minus 1. You need to find the length of the side of the triangle. Now we know कि अगर हमें line का equation पता है और point के coordinate पता है तो हम ये perpendicular distance निकाल सकते हैं.
ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। एंड वी नो कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देयर इज अ रिलेशन बिटवीन हाइट एंड द साइड। ओके, सो हाइट आएगा तो साइड भी आ जाएगा। निमसेट 2013 का एक क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस, यानी कि इस हाइट को हमें निकालना है। सो हियर इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, सो ए बन जाएगा 1, बी बन जाएगा 1 एंड सी इज -2। ठीक है, एंड दिस इज आर एक्स ओ एंड वाई ओ। ठीक है, वी नो द फॉर्मूला। सो इट इज 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -2 upon under root of a square plus b square, that is equal to 1 square plus 1 square. This is the height. Okay, तो height यहां से बन के आ जाएगा 2 -1 -2 upon 1 plus 1 is 2. 2 minus 2 0, so it is -1 by root 2. बट ये क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, सो इट इज 1 अपॉन रूट 2। तो ये हाइट अपना बन के आ गया 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, यहां से हमें साइड निकालना है। सो वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हाइट इज नथिंग बट √3/2 इंटू साइड। सो आई कैन से दैट कि साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन √3। एच हम निकाल चुके हैं, सो इट इज 2 √2 इंटू √3। 2 divided by √2 is √2. So this is √2 divided by √3. So this is the answer, under root of 2 by 3. Yes. So this is NIMSET 2013 का question. Next, a line L had intercept A and B on coordinate axis. When axes are rotated through a given angle, keeping the origin fixed, the same line has intercepts P and Q. ठीक है, तो मान लो कि एक लाइन है एल ऐसे, ठीक है, सपोज दिस इज लाइन एल और उसके इंटरसेप्ट है ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। Okay, so we know from this we can find the equation of a line. What will become the equation of the line? So equation of the line is nothing but x upon a plus y upon b is equal to 1. Correct? This is nothing but the equation of the line. ठीक है, सो और इसके हमने अभी क्या किया है, व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल। सो ये जो एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, इसको हमने रोटेट किया है। रोटेट इस तरह से करना है सो दैट कीपिंग द ओरिजिन फिक्स, यानी कि ओरिजिन तो यही रहने वाला है, दिस इज द ओरिजिन, यही ओरिजिन रहेगा। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आप सोचो कि अगर ये ओरिजिन वही रहेगा, तो यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, ये वहां से ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू चेंज। नाउ द न्यू इंटरसेप्ट इज पी एंड क्यू, बट बाकी की सब चीजें तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहेगा। सो दिस पॉइंट इज 0,0। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन द फर्स्ट केस? In the first case, can I say the perpendicular distance is ax0? Now this is x0 because ये point के coordinates है, this is y0. So ax0 plus by0 तो सेम रह जाएगा। और इसको अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो इसको हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करते हैं, then here we can say that a is nothing but 1 upon a, b is nothing but 1 upon b and c is equal to -1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? पहले में तो इट इज 1 अपॉन a इंटू 0 प्लस 1 बाई b इंटू 0 एंड -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी विल राइट। ठीक है,
और अगर इसके एक्सिस हमने रोटेट कर दिए, मतलब एक्सिस सपोज नाउ एक्स एक्सिस ऐसा हो गया सपोज, और वाई एक्सिस सपोज ऐसा हो गया, ओके, एंड लाइन तो वही है, लाइन इज द सेम। तो अभी इसके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाएंगे। नाउ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 1/p एंड 1/q। तो जिस तरह से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन के आ रहा है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट -1/√of 1/a² प्लस 1/b², ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। तो सिमिलरली इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा। सो बिकॉज लाइन वही है, ओरिजिन वही है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिमेन सेम। बट इस केस में डिस्टेंस इसी तरह से क्या बन के आ जाएगा, -1/√of 1/p² प्लस 1/q², क्योंकि इंटरसेप्ट सिर्फ चेंज हुआ है, ए बी का पी क्यू बन चुका है। नाउ इन बोथ द केस डिस्टेंस इज सेम, सो वी कैन से दैट कि ये वाली जो है दिस एंड दिस इज सेम। So 1 is equal to 2 क्योंकि distance is same. So from this I can say that कि 1/√of a² plus 1 plus b², 1/b² is equal to 1/p² plus 1/q²। ठीक है, अंडर रूट निकाल देते हैं। So we can say that 1/a² plus 1/b² is equal to 1/p² plus 1/q²। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया कि लाइन का इक्वेशन हमने निकाला, क्योंकि दोनों के इंटरसेप्ट दिए थे। सो वी फाउंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पर ये इक्वेशन बन रहा था, और इस केस में क्योंकि इंटरसेप्ट पी और क्यू हो चुका था तो दूसरा इंटरसेप्ट बन गया। बट सिंस द लाइन इज सेम एंड द ओरिजिन इज फिक्स, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करके वी गॉट द आंसर। Now, this is very, very important. Slope of parallel lines and perpendicular lines. तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने दो parallel lines बनाए. Suppose this is x axis and this is y axis. So this angle is theta. ठीक है, और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, so this angle is also theta. So since दोनों के एंगल सेम है, थीटा इज सेम, सो tan थीटा इज सेम, tan थीटा इज सेम यानी कि स्लोप इज सेम। इट मींस वी कैन से कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज सेम। सिमिलरली इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो स्लोप जो होता है उनका प्रोडक्ट बनता है -1। ठीक है, सो व्हाट वी लर्नड हियर कि सपोज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m1 and suppose the slope of this line is m2, but since both the lines are parallel, I can say that कि दोनों का slope equal होगा, यानी कि m1 is equal to m2। Whereas in this particular case both the lines are perpendicular, suppose the slope of the first line is m1 and slope of the second line is m2, तो I can say that कि m1 into m2 is equal to -1। This is for the perpendicular lines। ठीक है, now whether the lines are parallel, perpendicular or none, ठीक है, ये हमें निकालना है। सो बेसिकली हमें स्लोप निकालना है। स्लोप पता चलेगा तो पता चलेगा कि लाइन परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट केस में इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। वी नो दैट कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो यहां से हमें स्लोप कैसे निकालना होता है, तो स्लोप इज नथिंग बट x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट और आगे माइनस का साइन। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -2/3। सिमिलरली ये सेकंड लाइन का स्लोप हो जाएगा फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, x का कोएफिशिएंट देन y का कोएफिशिएंट, सो इट इज 2/3 आगे माइनस का साइन। नाउ यू कैन सी दैट कि दोनों का स्लोप इज सेम, इट मींस दैट बोथ द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर केस। यहां से स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज x का कोएफिशिएंट 10, y का कोएफिशिएंट -13 और आगे माइनस का साइन, तो दिस इज नथिंग बट 10/13। सिमिलरली स्लोप ऑफ दिस लाइन x का कोएफिशिएंट 13, y का कोएफिशिएंट 10, आगे माइनस का साइन, सो इट इज -13/10।
फर्स्ट लाइन का स्लोप इज 10/-13, सेकंड लाइन का स्लोप इज -13/10. डेफिनेटली द लाइंस आर नॉट पैरेलल बिकॉज द स्लोप्स आर डिफरेंट. एक बार m1 इंटू m2 करके चेक करते हैं. तो साफ साफ दिख रहा है कि आंसर -1 आ रहा है. इट मीन्स दैट इन द सेकंड केस both the lines are perpendicular to each other. Next, parallel lines. नाउ वी नो दैट कि पैरेलल लाइंस में स्लोप जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ओके, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं? तो स्लोप हम निकालते हैं एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट माइनस का साइन. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनके एक्स एंड वाई कोएफिशिएंट हैज टू बी सेम, क्योंकि अदरवाइज वो लाइन पैरेलल नहीं बनेंगे. सो इफ the equation of this line is ax plus by plus c1 is equal to 0, तो इस वाली इक्वेशन, ये जो दो बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो सेकंड वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन, उसका भी x कोएफिशिएंट a ही रहेगा, y कोएफिशिएंट b ही रहेगा. सो दिस कैन बी रिटर्न एज ax प्लस, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर कांस्टेंट c1 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कुछ और होगा. सो लेट्स पुट दिस एज c2. ओके, so parallel lines में x and y coefficient are same. Okay, or otherwise you can say कि if x and y coefficient are same, then you can say that the lines are parallel. ठीक है, और इसी को अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है, y is equal to mx plus b1. For an example, two lines are parallel. So suppose the equation of this line is y is equal to mx plus b1. So इसका इक्वेशन बन जाएगा y is equal to, since this is m which represents slope, दोनों लाइन का स्लोप सेम है, तो ओनली डिफरेंस इज कि b1 का b2 हो जाएगा. तो कांस्टेंट में सिर्फ फर्क होगा, स्लोप इज सेम. Okay, now find the equation of the line which is parallel to the line 2x plus 2y plus 5 is equal to 0 and passing through the point 1 comma minus 1. ठीक है, so suppose this is the line जिसका आपको इक्वेशन निकालना है. Suppose this is line L1 and on this line there is a point 1 comma minus 1. और एक और लाइन है, suppose this line is L2. This both these lines are parallel. इसका इक्वेशन हमें पता है, that is x plus 2y plus 5 is equal to 0. Now you have to find the equation of this line L1. इक्वेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. डिपेंडिंग ऑन द डेटा वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. नाउ हियर सिंस वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट वी ऑलरेडी नो, अगर हमें इस लाइन L1 का स्लोप मिल जाता है, देन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो स्लोप कैसे मिलेगा? सिंस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, दोनों के स्लोप इक्वल है, यानी कि लाइन L2 का स्लोप इज इक्वल टू लाइन L1 का स्लोप. इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा x का कोएफिशिएंट विच इज 1, y का कोएफिशिएंट 2 माइनस, इसका स्लोप इज माइनस हाफ. इट मींस कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज आल्सो माइनस हाफ. स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1. सो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1. ठीक है, 2 को यहां भेज देंगे, सो 2y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. So I can say that x plus 2y plus 1 is equal to 0. This is the equation of the line. Next, find the equation of a line parallel to the line and passing through the midpoint of the line joining the points 1, 3 and 1 minus 7. Very simple. एक लाइन है, find the equation of the line and passing through the midpoint. तो ये suppose these are the coordinates 1 comma minus 7, और rather I would say कि एक लाइन है, इसके ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स है 1 comma minus 7 and other coordinate is suppose 1 comma 3. इनका जो मिड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट इज पासिंग थ्रू दिस लाइन. सपोज दिस लाइन इज L1 और इसका हमें इक्वेशन निकालना है, इसका
इक्वेशन निकालना है, ठीक है। एंड दिस लाइन L1 इज पासिंग थ्रू, सॉरी, इट इज पैरेलल टू अनदर लाइन L2 जिसका इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 7. This question is just like the previous question. We will find the slope of line L2 which is also equal to the slope of line L1 and slope, और इस लाइन L1 पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। नाउ x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड हियर x कोऑर्डिनेट इज 1, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला में -7 + 3 दैट इज इक्वल टू -4, -4 का हाफ इज -2, सो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, -2 एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नथिंग बट x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -3, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2, 3, तो इस लाइन का स्लोप भी बन गया 2, 3, 2/3. Okay, now find the equation of the line. Once again, we'll use the slope point form. So y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y, this is x1 and this is y1. So y plus 2 is equal to slope is 2/3 into x minus 1. So 3y plus 6 is equal to 2x minus 2. So I can say that 2x minus 3y minus 8 is equal to 0. This is the equation of a line. Next, find the distance between two parallel lines. Y is equal to 2x plus 4 and 6x is equal to 3y plus 5. Okay. Now, अगर दो parallel line है, okay. Now, the equation of the first one is y is equal to 2x plus 4 और second का equation है 6x is equal to 3y plus 5. Both the lines are parallel. आपको इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले इसके डिस्टेंस के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस whose equation is this. Suppose there are two parallel lines. We know कि दो parallel lines होंगे तो उनके x and y coefficient is same. तो suppose this इसका equation है ax plus by plus c1 is equal to 0. And the equation of this line is ax plus by plus c2 is equal to 0. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज c1 minus c2 अंडर रूट ऑफ 1 plus m square. m is the slope of the lines, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज, डिस्टेंस इज इक्वल टू c1 minus c2 अंडर रूट ऑफ a square plus b square, यानी कि ये c1 दिस c2 a square plus b square, दोनों में a and b का कोएफिशिएंट सेम होगा। ओके, नाउ बिफोर यू यूज दिस फॉर्मूला आपको कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना है। पॉइंट्स टू नोटिस कि c1 एंड c2 शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि c1 और c2 या तो आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड में रखो या फिर दोनों को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रखो। ऐसा मत करना कि c1 लेफ्ट हैंड साइड में है, c2 राइट हैंड साइड में है, नहीं, एक प्रॉपर पैटर्न में लिखना है। And second thing is coefficient of x and y should be same in both the equation. Same नहीं है तो कुछ multiply divide करके आप उसे same कर सकते हो, क्योंकि same ही होगा because both the lines are parallel. Confuse करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे वो कर सकते हैं, but these 2 points we have to keep in mind. Now doing this we will find the distance. Okay. Now बिफोर वी सो हियर व्हाट वी विल डू ना, कि ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 2x minus y plus 4 is equal to 0 and this can be written as 6x minus 3y minus 5 is equal to 0. Now first thing you will notice here is कि x and y के coefficients are different. Okay, so this is 2x and this is 3y. तो इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं 2x minus y is equal to -4 और इसमें हम क्या करेंगे, 6x को 2x बनाना है, so we have to divide by 3.
So divide the whole equation by 3. So we will get 2x minus y is equal to 5 by 3. ठीक है. So now our a is 2, b is minus 1. This will become C1. So C1 is equal to minus 4 and C2 is equal to 5 by 3. आप देख रहे हो इन बोथ द केस x एंड y कोएफिशिएंट सेम और C1 C2 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है. सो बोथ द conditions, both the points we have taken care of. Distance is nothing but C1 minus C2. So it is minus 4 minus 5 by 3 upon under root of a square plus b square. A square is 2 का square, b square is minus 1 का square. Minus 4 minus 5 by 3 कैसे लिखोगे? This is nothing but 4 plus 5 by 3 can be written as 12 plus 5, so 17 by 3. तो इसको हम लिख सकते हैं 17 डिवाइड बाई 3 और नीचे आ जाएगा 4 plus 1 that is equal to 5. So this is the answer. माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है. सो आंसर इज 17 डिवाइडेड बाय 3 रूट 5. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If these are the midpoints of the triangle, then the equation of the line BC, ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो देखिए ये B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं. सपोज दिस इज A. सो मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, BC का मिड पॉइंट है 2,1. CA का मिड पॉइंट इज -1, -2 and AB का मिड पॉइंट इज 3,3. ठीक है, इज दिस फाइन? नाउ वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन BC. आप देख रहे हो BC पे ऑलरेडी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है. सो एंड मिड पॉइंट होंगे ना, तो ये जो दो लाइन होंगी ये पैरेलल होगी. सपोज दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E. सो आई कैन से दैट कि DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC. नाउ BC का वन कोऑर्डिनेट पता है. अगर हमें BC का स्लोप मिल जाएगा तो हमें बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा. तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ D बिकॉज बोथ द लाइंस आर पैरेलल. हमारा काम है DE का स्लोप निकालना. D का स्लोप कैसे निकालोगे? Now these 2 points are parallel. Okay, so slope of DE is nothing but we can say कि D. Slope of BC is equal to slope of DE और DE का स्लोप क्या हो जाएगा? So y का डिफरेंस, so it is 3 minus minus 2 यानी कि 5 and x का, so 3 minus minus 1 that is equal to 4. So slope of BC is equal to slope of DE is equal to 5 by 4 और यही BC का भी स्लोप बन जाएगा. So now we will use the formula. So y minus y1 is equal to m into x minus x1. So 4y minus 4 is equal to 5x minus 10. So 5x minus 4y minus 6 is equal to 0. This is the equation of a line. 5x minus 4y minus 6 is equal to 0. Next, perpendicular lines. So now we know that if the two lines are perpendicular, then the slope is minus, product of the slope is -1. दूसरी एक चीज का ख्याल रखना है कि क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. सपोज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0. तो ये जो दूसरी लाइन है, ओके, उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी. These two lines are perpendicular. So इसकी इक्वेशन ऐसा हो जाएगी, ये जो x का कोएफिशिएंट है that will become the y का कोएफिशिएंट. तो ये bx हो जाएगा and minus ay plus k is equal to 0. This is how you can write the equation. Okay. Now, if x plus 4y minus 5 is equal to 0 and are the two perpendicular line, then find the value of k. Now, since we know that ki both the lines are perpendicular, तो slope
इज नथिंग बट, इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। इसका स्लोप हो जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट दैट इज 4, आगे माइनस का साइन। एंड उसी तरह से द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन इज x का कोएफिशिएंट 4 and y का कोएफिशिएंट k, so minus 4 by k. Now since we know that both the lines are perpendicular, so the product of the slope is minus 1, so minus 1 by 4 into minus 4 by k is equal to minus 1. Minus minus cancel, 4 4 cancel, so k is equal to minus 1. Next, equation of a line perpendicular to x minus 2y is equal to 1 and passing through the point 1 comma 1. Okay, so this, suppose this is the line जिसका हमें इक्वेशन निकालना है. This line is passing through the point 1 comma 1 and this line is perpendicular to another line. और इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है that x minus 2y is equal to 1. Now since we know the equation of the line, we can find the slope of the line L2. Slope of line L2 मिलेगा तो slope of line L1 भी मिलेगा because the product is minus 1. So using slope point form we can find the equation of line L1. तो पहले तो इसका slope निकालते हैं line L2 का. इसका slope हो जाएगा x का कोएफिशिएंट that is equal to 1, y का कोएफिशिएंट -2, तो इसका slope हो रहा है हाफ. इट मीन्स कि ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो इसका स्लोप हो जाएगा -2. आपको क्या करना है, हाफ का रेसिप्रोकल लेना है, सो दैट इज 2 और आगे एक माइनस का साइन लगा दो. सो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज -2. नाउ यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी विल गेट द आंसर. सो y -1 इज इक्वल टू -2 into x -1. So y -1 is equal to -2x plus 2. So 2x plus y -3 is equal to 0. कहां पर है ये? ओके, यहाँ पर y के फॉर्म में दिया है. सो y is equal to -2x plus 3 है कहीं पर. यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. y is equal to -2x plus 3. Next, NIMSET 2015. The foot of the perpendicular from the point 2, 4 upon x plus y is equal to 1 is. Okay, now so suppose this is the line और उसका इक्वेशन इज गिवन एज x plus y is equal to 1. यहां से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है. परपेंडिकुलर इस पॉइंट से बना है 2, 4. ठीक है. ओके, नाउ योर जॉब इज टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं. आपको क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालते हैं. इसका स्लोप आएगा तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका भी स्लोप आएगा. ओके, और वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा. सो दिस इज हाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, स्लोप ऑफ लाइन, ये जो स्लोप है इस वाली लाइन का, इसका स्लोप क्या बन जाएगा. सपोज दिस इज m1, तो इसका स्लोप बन रहा है -1. ठीक है, तो ये जो लाइन है, सिंस इट इज परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हो जाएगा -1 का रेसिप्रोकल इज -1 ओनली और प्लस का साइन, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1. ओके, नाउ इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. दिस इज L1, दिस इज L2. सो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या बन जाएगा, फॉर्मूला इज स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे. सो y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is y minus 4 is equal to m into x minus 2. ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा. Okay, so from this I can say that y minus 4 is equal to x minus 2. ठीक है, so x minus y plus 2 is equal to 0. ठीक है, अभी हमारा काम है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना. सपोज इस पॉइंट के,
ठीक है। अभी ये देखो, ये जो पॉइंट है ए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है ए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइंग ऑन टू लाइंस। एक तो ये पॉइंट L1 लाइन के ऊपर है। आप देख रहे हो ये पॉइंट ए है सपोज, दिस इज ऑन लाइन L1 एंड दिस इज ऑल्सो ऑन लाइन L2। ये L1 L2 के दोनों के ऊपर है। तो कहना इसे कि ये जो पॉइंट ए है, it will satisfy the equation of line L1 and also it will satisfy the equation of line L2. Now L1 की इक्वेशन है x plus y is equal to 1 and L2 का equation is x minus y plus 2 is equal to 0. So if we'll solve both the equations simultaneously, so we will get the coefficient, we will get the value of x and y, और वही पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आई कैन से दैट 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 1 इज -1। सो x का कोएफिशिएंट आ गया, सॉरी x की वैल्यू आ गई -12 एंड y, x plus y is equal to 1. So I can say that -12 plus y is equal to 1. So y is equal to 1 plus half, that is equal to 3/2. So आ गए point A के coordinates. Point A का coordinate, x coordinate is -12 and y coordinate is 3/2. So this is the answer. Next. If 4 -4, 5 is one vertex and is the diagonal of the square, then the equation of the another diagonal. ठीक है, एक तो एक square है and इस square में there are two diagonals. Equation of one diagonal we know that it is 7x minus y plus 8 is equal to 0. And there is one vertex over here. अभी ये vertex कौन सा है, कौन सा point का बात हो रहा है, that we don't know. So suppose the points are A, B, C, D. तो first of all we need to find कि ये जो point है जिसका coordinates is given as -4, 5, ये कौन से वाले diagonal पे बैठा है। क्या ये diagonal का ये point AC है या फिर point BD है। Okay, so what we'll do, we'll put the value of here, we'll put the value of this in this particular equation. अगर ये satisfy कर रहा है इसका मतलब है कि point is either A और C। अगर वो satisfy नहीं कर रहा है it means point is either B और D। ठीक है। Now so put this so 7 minus 4 minus y is 5 plus 8, क्या ये 0 हो रहा है, नहीं। So this is -28 minus 5 plus 8, this will not give you 0. It means कि -4, 5 इस वाले AC के ऊपर नहीं है। It means कि ये मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है ये। ठीक है। And now you have to find the equation of the diagonal BD। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD कैसे निकालोगे, एक पॉइंट तो पता है, अगर हमें स्लोप मिल जाएगा तो आंसर आएगा। वी नो दैट इन अ स्क्वायर the diagonals are perpendicular of each other. So what we'll do, we will find the slope of line AC, which is equal to -7 upon -1, that is equal to 7. So slope of line, ये कौन किसका स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया AC का, AC का स्लोप। तो सिमिलरली BD का स्लोप क्या हो जाएगा, slope of BD is nothing but -1/7 because the diagonals are perpendicular to each other. Now, so equation of the line using slope point form. Formula is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus 5 is equal to -1/7 into x plus 4. 7 को will take it on left hand side. So 7y minus 35 is equal to minus x minus 4. So x plus 7y minus 31 is equal to 0. This is the equation. निमसेट 2015 का this is the question. Now देखो, दो लाइंस अगर है तो ये दो लाइंस के बीच में सिर्फ तीन ही चीज हो सकती है। फर्स्ट थिंग कि ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा।
या तो फिर ये हो सकता है कि दोनों लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। या तो फिर ये हो सकता है कि दोनों लाइंस ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस कुछ तो एंगल बनेगा दोनों के बीच में। सो सपोज देयर इज लाइन, सपोज दिस इज द लाइन जिसकी इक्वेशन है ax2 plus by2 plus c2 is equal to 0, and there is another line whose equation is ax1 plus by1 plus c1 is equal to 0, and if there is an angle theta between them, and if you want to find the value of theta, then the formula is tan theta is equal to a2b1 minus b2a1 divided by a1a2 plus b1b2. Or if you know the slope, then you can use this formula, tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. So this is, through this you can find the angle theta. So with this, we are through with the today's topic. And in this particular topic, we learned about parallel lines, perpendicular lines, and the angle between the lines. This is the most important part of the topic, straight lines, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर लाइन से ही बन के आते हैं. So I hope you have understood my this particular session, and keep on learning math because math is easy. Thank you.